Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in this video we are going to read the book exercises and question answers of chapter number 11, Chennai. Okay, so this chapter is there in your social studies book, class 3. Okay, so let's start. So students, let's start with the fill in the blanks of this chapter. I hope you have already watched the video and read the chapter. Okay, so first fill in the blank. The people of Chennai speak dash and dash. We have already read in the chapter that people of Chennai speak Tamil and English. So these are the two languages that are spoken in Chennai. Okay, so this is the answer. चेन्नई में तमिल और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेजेस बोली जाती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ चेन्नई एंड वी नो दैट विच इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ चेन्नई एंड द आंसर इज भरतनाट्यम. भरतनाट्यम. दिस इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ चेन्नई. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल सेलिब्रेट डैश इन मिड जनवरी. मिड जनवरी में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तमिलनाडु में या चेन्नई में? द आंसर इज पोंगल. पोंगल एक ऐसा फेस्टिवल है जो जनवरी मंथ में वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है. नंबर 4, ऑन स्पेशल ओकेजन्स फूड इज सर्व ऑन अ डैश लीफ एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज अ बनाना लीफ. जब भी कोई स्पेशल फंक्शन होता है, कोई ओकेजन होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, तब वहाँ पर बनाना लीफ पर जो है फूड सर्व किया जाता है. द लास्ट फिल इन द ब्लैंक. नंबर 5, द डैश एंड डैश बीचेज आर पॉपुलर अमंग द टूरिस्ट. सो इफ यू विल विजिट चेन्नई, देन विच आर द 2 famous beaches or popular beaches that you visit? The first answer is Marina Beach and the second one is the Elliot Beach. Elliot Beach. So these are the 2 beaches that are popular among the tourists, and if you will visit Chennai, then you should visit these 2 popular beaches also. Okay, now let's see next exercise, that is write T for true and F for false. So let's see which are the sentences given here false and which are true. So first one is, the city of Chennai has 2 major ports, namely Chennai and Ennore, and we have already studied in the chapter that Chennai and Ennore, these are the 2 ports in Chennai. Okay, so this answer is correct, means this sentence is true. Second, people of Chennai speak Punjabi. Do you think in Chennai people speak Punjabi? No. In Chennai 2 languages are spoken, that is Tamil and English. Punjabi is spoken in Punjab. So this answer is, this sentence is wrong. So we can write here false, F. So second answer is false. Number 3, Chennai has many automobile industries. It is very correct. Chennai में बहुत सारी automobile industries है. So this answer is true. People of Chennai mostly wear cotton clothes. This is also correct because the climate in this city, that is Chennai, it is tropical climate, means it is very we can say humid. वहाँ की जो air होती है वो बहुत humid होती है, and that's why people wear cotton cloths. So cotton cloths जो है, they are comfortable to wear in such a tropical climate. So this answer is also correct, means this statement is true. Number 5, the first railway station in Chennai was opened at Mahabalipuram. Is it correct? No. The first railway station in Chennai was opened at Royapuram, not Mahabalipuram. So this statement is also false. So these are your true false. Now let's see next exercise, that is name the following. So we have to just write the names of these things. So what is the name of large IT park in Chennai? So the IT park that is in Chennai, and its name is Tidal Park, TIDEL, Tidal Park, and this is the IT park. Okay, Tidal Park.
TIDEL. Then next question, number 2, oldest choir group in India. Which is the oldest choir group in India? It is the Madras Youth Choir. Madras Youth Choir is the oldest choir group in India. The next question, the dress worn by girls in Chennai. चेन्नई में गर्ल्स कौन सी ड्रेस पहनती है? दे वियर अ लॉन्ग स्कर्ट एंड दिस स्कर्ट इज नोन एज पवडाई. एंड इसके साथ क्या पहना जाता है? इसके साथ पहना जाता है लॉन्ग ब्लाउज. सो पवडाई एंड लॉन्ग ब्लाउज. दिस इज द ड्रेस worn by चेन्नई गर्ल्स. लॉन्ग ब्लाउज. Okay, pavadai and long blouse. This is the dress worn by girls in Chennai. The next question, number 4, on special occasions food is served on this. That is banana leaf. हमने अभी इसको fill in the blanks में भी पढ़ा था. बनाना लीफ पे फूड सर्व किया जाता है जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है तब. सो बनाना लीफ, यू कैन राइट बनाना लीफ. ओके. The next question is, last question, name the following. The first railway station in South India was opened here. South India का first railway station कहाँ बना था? And the answer is Royapuram. Royapuram, not Mahabalipuram. हमने महाबलीपुरम वाला क्वेश्चन भी पढ़ा था इसमें, है ना, ट्रू फॉल्स में. तो Royapuram is the answer. First railway station in South India was opened in Royapuram. Okay. So these are the name the following of this chapter. So these all are book exercises and you write in your book. So first question of chapter number 11 is, what is Anasalai? Anasalai क्या है? So हमने जब चैप्टर पढ़ा था और जब वीडियो देखा था इसका, तो हमने देखा था कि जो चेन्नई सिटी है उसके दो पार्ट्स हैं. एक तो है ओल्ड सिटी जिसको जॉर्ज टाउन के नाम से जानते हैं और दूसरा है सदर्न पार्ट ऑफ द चेन्नई. ओके. तो अन्नासलाई एक रोड है, बहुत एक बड़ी सी रोड है. ये रोड जाती है सदर्न पार्ट ऑफ चेन्नई में से. ओके. सो व्हाट इज अन्नासलाई? अन्नासलाई इज द मेन रोड रनिंग थ्रू द सदर्न पार्ट ऑफ चेन्नई. चेन्नई के सदर्न पार्ट में से गुजरने वाली एक ये मेन रोड है. ओके. आपने वीडियो में इसकी पिक्चर भी ज़रूर देखी होगी. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डू वी फाइंड इन चेन्नई? यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? सो द आंसर इज चेन्नई हैज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट. अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट किसे कहते हैं? ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऐसा होता है जो हॉट एंड ह्यूमिड होता है. इट इज़ नोन एज ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ह्यूमिड का मतलब होता है एयर में बहुत सारा गीलापन होना, वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं उसमें, है ना, मॉइस्चर ज़्यादा होता है एयर में. सो द वेदर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड एंड इट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर्स. अब चेन्नई में रेनफॉल कब होता है? मोस्टली विंटर्स में. अब ये विंटर्स में ही क्यों होता है? इसका आंसर जो है आपको आपकी जब हायर क्लास में आप पढ़ोगे सोशल स्टडीज़ तब आपको इसका आंसर मिलेगा. बट मैं आपको यहाँ बता दूँ कि विंटर मानसून जो होता है उसकी वजह से चेन्नई में विंटर्स में बारिश होती है. ओके. सो दिस इज़ द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which is the most popular dance form of Chennai? So Bharatanatyam is the most popular dance form of Chennai. ये यहाँ का क्लासिकल डांस है, वेरी फेमस क्लासिकल डांस ऑफ चेन्नई. और ये डांस ऐसा है जो ना कि सिर्फ इंडिया के लोग बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये डांस सीखा जाता है. लोग इसको बहुत पसंद करते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ चेन्नई? चेन्नई के जो ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? तो मोस्टली वहाँ पर मेटल से बनी हुई चीज़ें जो हैं, हैंडीक्राफ्ट है, वो बनते हैं. तो इसका आंसर देख लें. तो इसका आंसर है ब्रॉन्ज, जो कि एक मेटल होता है या फिर जिसको हम कहते हैं कि एलॉय होता है, मतलब मेटल्स को मिक्स करके ये बनाया जाता है ना. तो ब्रॉन्ज है और उस मेटल से, ब्रॉन्ज से या दूसरे मेटल से हैंडीक्राफ्ट्स बनाई जाती है. मतलब डेकोरेशन के जो पीसेस होते हैं हम जो घर में रखते हैं, जैसे कि वासेस हैं, देन कुछ वॉल हैंगिंग्स होते हैं, है ना, बड़े बड़े पॉट्स होते हैं, वो इससे बनाए जाते हैं. देन स्टोन कार्विंग्स, स्टोन में कार्विंग करके चीज़ें बनाई जाती हैं. गोल्ड एंड डायमंड की ज्वेलरी यहाँ की फेमस है.
देन सिल्क साड़ी यहाँ पर फेमस है। तो ये यहाँ के ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट्स है चेन्नई के। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन चेन्नई। हमने एक कॉमन चीज़ देखी है कि जो भी बड़े सिटीज़ होते हैं वहाँ पर इंडिया से अलग अलग जगह से आने वाले लोग रहते हैं। तो चेन्नई भी एक ऐसा सिटी है और यहाँ पर इंडिया के अलग अलग जगह से लोग आकर के सेटल हुए हैं। तो जब सब लोग एक साथ हैं तो सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर मनाए जाते हैं, जैसे कि पोंगल जो कि यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है, देन दिवाली, ईद एंड क्रिसमस, दीज आर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन चेन्नई। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड आंसर। This is exercise E in your book, think and answer, and the question is, apart from Chennai there are other places of cultural importance। सिर्फ चेन्नई नहीं, तमिलनाडु में और भी दूसरी कल्चरल इंपॉर्टेंस की प्लेसेस है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 3 सच प्लेसेस। तो चलो देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्लेसेस है तमिलनाडु में जो कि फेमस है। तो फर्स्ट इज मीनाक्षी टेम्पल जो कि मदुरई में है। इट इज़ अ रिलीजियस प्लेस, ये एक टेम्पल है हिंदुओं का, मीनाक्षी टेम्पल। देन बृहदेश्वरा टेम्पल भी है जो कि एक आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है। यहाँ का आर्किटेक्चर जो है वो बहुत सुंदर है, अनोखा है। द नंबर 3 मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम आपने सुना हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स है दे आर ऑल्सो वेरी फेमस। देन शोर टेम्पल, दिस इज ऑल्सो अनदर प्लेस टू विजिट इन तमिलनाडु। एंड पंबन ब्रिज इन रामेश्वरम। सो दीज आर द फ्यू प्लेसेस यू कैन विजिट व्हेन यू गो टू तमिलनाडु। ओके, then come to the life skill. So life skill, it is the last exercise in your book, exercise F. Okay, so the question is, what are the precautions we must take while visiting a beach। जब हम बीच पे जाते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी होती है। तो आंसर देखते हैं इसका। फर्स्ट, नेवर स्विम अलोन, ऑलवेज स्विम विथ समवन एल्स। आप जब भी बीच पे जाएंगे तो अकेले नहीं जाना है, इट इज़ डेंजरस फॉर यू। यू शुड टेक समवन विथ यू, जो आपसे बड़े हो, आपसे एल्डर हो या आपके फ्रेंड हो, बट वो समझदार होने चाहिए। किसी भी कंडीशन में वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो नेवर स्विम अलोन, ऑलवेज स्विम विथ समवन एल्स। देन सेकेंड, ऑप्ट फॉर अ सुपरवाइज्ड बीच। अब सुपरवाइज्ड बीच का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो लाइफ गार्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो उनके प्रेजेंस में आपको उस बीच को विजिट करना है ना। क्योंकि कभी भी कुछ भी अगर ऐसा होता है, इंसिडेंस होता है, तो ये लोग आपकी हेल्प के लिए वहाँ पर होते हैं। उनको लाइफ गार्ड इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे सेव लाइव्स ऑफ द पीपल। देन नंबर 3, ओबे साइंस एट द बीच। जैसे रोड पे हम साइंस देखते हैं, ट्रैफिक साइंस होते हैं, इन द सेम वे beaches also have some signs and these signs are for your protection, आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं, and you should obey all the signs that are there on the beach। okay, तो ये साइंस आपको कोई भी ऐसे इंसिडेंट से बचाते हैं जो आपके लिए हार्मफुल हो, है ना, डेंजरस हो। देन नंबर 4, protect yourself from the sun। now you are going on the beach, so there will be sunshine, so you have to protect yourself from the sun। you should carry water with you ताकि आपको हीट स्ट्रोक से आप बच सकते हो। देन यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर स्किन ऑल्सो, क्योंकि ओपन सन में जब आप जा रहे हो तो आपकी जो स्किन है वो डार्क होने का चांस होता है। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग ऑल्सो। देन नेक्स्ट जो नंबर 5 है, इट इज़ ऑलवेज स्विम बिटवीन द रेड एंड येलो फ्लैग्स। अब रेड एंड येलो फ्लैग्स क्या होते हैं। देर आर रेड एंड येलो फ्लैग्स ऑन द बीचेस एंड उनके बीच में ही आपको स्विमिंग करना चाहिए बिकॉज दीज आर द सेफेस्ट प्लेसेस। ये बीच की सेफ प्लेस होती है जहाँ पर आप स्विम कर सकते हो एंड दीज प्लेसेस आर पेट्रोल्ड बाय लाइफ गार्ड्स एंड लाइफ सेवर्स। ये ऐसी जगह होती है, ऐसी प्लेस होती है बीच पे जहाँ पर लाइफ गार्ड्स और जो लाइफ सेवर्स होते हैं उनकी पेट्रोलिंग होती है, मतलब वो लोग वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी प्रेजेंस में वहाँ पर किसी के भी ड्राउनिंग का मतलब डूबने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जैसे ही ऐसा कुछ इंसिडेंस होता है तो ये लोग आपकी हेल्प के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। ओके, सो ऑलवेज स्विम बिटवीन द रेड एंड येलो फ्लैग्स। ये फ्लैग्स वहाँ पर लगे होते हैं बीच के ऊपर। ओके, so this is all about the precautions that we should take when we visit a beach। okay, so here we have finished the exercise and question answers of chapter number 11। we will soon meet in our next video in which
we will discuss the book exercise and question answers of chapter number 12. Okay, so till then, take care. Bye bye.